नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाउ डज इंटरनेट वर्क्स। इंटरनेट काम कैसे करता है। तो दोस्तों देखिए, आइए, हाउ डज इंटरनेट वर्क्स। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग्स अबाउट द इंटरनेट इज द नो बडी रियली ऑन्स इट। ये तो अपनों को पता है कि इसका कोई मालिक नहीं होता है। इट इज़ अ ग्लोबल कलेक्शन ऑफ द नेटवर्क, बोथ बिग एंड स्मॉल। दीज नेटवर्क्स कनेक्ट टूगेदर इन मैनी डिफरेंट वेज ऑफ to form the single entity that we know as internet. In fact, a very name comes from the idea of the interconnected networks. Interconnected network से ये अपना इंटरनेट इसको लिया अपन ने। इंटरकनेक्टेड का इंटर और नेटवर्क्स का नेट उठा के इंटरनेट बनाया है। सिंस इट बिगिनिंग इन 1969, ये 1969 में बना था। द इंटरनेट हैज़ ग्रोन फ्रॉम 4 होस्ट कंप्यूटर सिस्टम टू टेंस ऑफ थाउजेंड्स. However, just because nobody owns the internet does not mean that it is not the monitored and maintained. इसका कोई मालिक नहीं है ये, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है और कोई मेंटेन नहीं कर रहा है. द इंटरनेट सोसाइटी, ए नॉन प्रॉफिट ग्रुप established in 1992, or oversees the information of the policies and protocol that define how we use the internet with the internet, interact with the internet. ये गूगल का फोटो आप देख रहे हैं. Before we learn about the basic underlying structure of the internet, e.g. domain name server, network access, backbones, we first need to understand how computer connects to other computer with internet. Every computer that is connected to the internet is a part of network, even the one in our home. For example, we may use modem and dial a local number to connect the internet service provider ISP. At work, a computer may be part of the local area network, but most likely still connected to the internet using an ISP that the company has contracted with. The when it connects to the ISP, जब ये ISP से connect होता है, it becomes the part of their network. The ISP may be connected to the larger network and become a part of the network. The internet is the simply a network of networks. Most large communication companies have their own dedicated backbones connecting various regions. In each region, the company has a point of presence (POP), or the POP is a place for the local users to access the company's network, often through the local phone number or dedicated line. The amazing thing here is that there is no overall controlling network. Instead, there are the several high-level networks connecting to the each other through the NAP नेटवर्क एक्सेस पॉइंट. देखिए आप दोस्तों, ये POP और NAP का डायग्राम है आपका. ये आपका घर है. जैसे ये अगर आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लेन बनी हुई है और सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, ठीक है. तो अब ये सभी आपका POP से कनेक्ट है, ISP से कनेक्ट है, NAP से कनेक्टेड है और इंटरनेट से कनेक्टेड है. तो दोस्तों इस तरह से ये काम करता है. अब अपन कुछ गेटवे जो होता है, ये क्या होता है देख लीजिए आप पहले. गेटवे इज एक्चुअली डिवाइस दैट कनेक्ट्स डिसिमिलर नेटवर्क. जो अलग अलग टाइप के नेटवर्क होते हैं, ठीक है. किसी नेटवर्क में आपने कोई प्रोटोकॉल काम में लिया है, दूसरे में किसी और प्रोटोकॉल काम में लिया है, तो इसके बावजूद भी ये गेटवे जो होता है ये डिसिमिलर टाइप के जो नेटवर्क होते हैं उनको भी कनेक्ट करता है. तो गेटवे इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स द डिसिमिलर नेटवर्क. ए बैकबोन इज अ सेंट्रल इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स वन और मोर नेटवर्क, जस्ट लाइक द ट्रंक ऑफ ए ट्री. At the source computer, the message to be sent is broken down into the small parts. जब आप कोई मैसेज भेजते हो तो वो छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और each packet is given a serial number e.g. 1 2 3, and all these packets are sent to the destination computer, or the destination computer receive the packet in the random order. 10 may come before 1, but the packets are reassembled in order to their number and message is restored. Now how it functions smoothly ये कैसे काम करता है. तो every computer connected to the internet uses the same set of the rules of communication. A set of rules is called the protocol, or communication protocol used by the internet is the TCP or IP, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और द इंटरनेट प्रोटोकॉल. अब TCP is a part of responsible for the dividing the message into packets on the source computer and reassemble at the destination, but the IP is the responsible for the handling the address of the destination computer so that the packet is sent to the proper destination. तो IP एड्रेस कंप्यूटर के IP एड्रेस को हैंडल करता है, जबकि TCP आपके जो मैसेज भेजते हैं उसको पैकेट्स में डिवाइड करने का काम करता है सोर्स पे, और
डेस्टिनेशन पे उसको रिअसेंबल करता है। नाउ एलिमेंट्री टर्मिनोलॉजी, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दोस्तों आपको समझनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है देखिए, एलिमेंट्री टर्मिनोलॉजी का सबसे पहले नोड क्या होता है या वर्क स्टेशन क्या होता है। तो हर कंप्यूटर को, नेटवर्क के हर कंप्यूटर को हम नोड कहते हैं। द टर्म नोड रेफर्स टू द कंप्यूटर दैट आर अटैच्ड टू ए नेटवर्क एंड आर सीकिंग टू द शेयर रिसोर्सेज। यानी कि नेटवर्क का हर कंप्यूटर नोड या वर्क स्टेशन कहलाता है। सर्वर कौन होता है? ए कंप्यूटर दैट फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ डाटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, रिसोर्सेज और द नेटवर्क। तो जो कंप्यूटर आपको ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाता है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और शेयरिंग ऑफ डाटा, तो वो आपका सर्वर कहलाता है। नाउ आता है NIU, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट या मैक एड्रेस। ए नेटवर्क इंटरफेस यूनिट इज an interpreter that helps in establishing the communication between the server and the client. Now the IP address. Every machine on the TCP bar या IP network has the unique identifying number called the IP address. हर मशीन का एक यूनिक नंबर होता है जिसको हम IP एड्रेस कहते हैं और उसी के थ्रू वो पहचाना जाता है। Now domain name. It is a way to identify and locate the computer connected to the internet. It must be unique. ठीक है, तो ये एक यूनिक होता है, तो ताकि हम कंप्यूटर को लोकेट कर सकें, और इंटरनेट पे वो एक यूनिक होता है, ये भी डोमेन नेम। नाउ टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब आती है भाई नेटवर्क के टाइप कितने होते हैं। तो दोस्तों एक कंप्यूटर नेटवर्क में भी स्मॉल और बिग डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द कंप्यूटर्स। कंप्यूटर का जो नेटवर्क होता है वो किस तरह कैटेगरी में कहलाएगा, ये कंप्यूटर के नंबर पर डिपेंड करता है। एंड अदर नेटवर्क डिवाइसेज लिंक टुगेदर, कि कितनी डिवाइस उससे कनेक्ट हैं और कितने कंप्यूटर कनेक्ट हैं। दिस नेटवर्क वेरी इन size, complexity, geographical spread. A computer network can be on a table. कंप्यूटर नेटवर्क एक टेबल पे भी बनाया जा सकता है, एक बिल्डिंग में बनाया जा सकता है, पूरी सिटी में मिलकर बनाया जा सकता है, कंट्री में और अक्रॉस द और ऑल द वर्ल्ड में बनाया जा सकता है। उसके अकॉर्डिंग ही इनको अपने डिवाइड किया है। तो देखिए, देखो ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पर नेटवर्क के को इस तरह से क्लासीफाई किया गया। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, तो ये 10 मीटर की रेंज के अंदर देख लीजिए आप बनाया हुआ है। पैन आर द स्मॉल नेटवर्क यूज्ड टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अदर हैंड हेल्ड डिवाइसेज इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द अप टू 10 मीटर्स यूजिंग द USB कनेक्टिविटी और वायरलेस सिस्टम लाइक ब्लूटूथ और इंफ्रारेड। तो 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर जो कनेक्शन हम बनाते हैं एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर या किसी हैंडल डिवाइस के साथ, चाहे मोबाइल डिवाइस हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे कोई अदर डिवाइस हो, USB डिवाइस, तो ये जो कनेक्टिविटी होती है इसको हम जो ब्लूटूथ या इंफ्रारेड के माध्यम से, इसको हम पैन कहते हैं। पैन आर द यूज्ड टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल्स एंड अदर्स। इट इनेबल्स डिवाइस, IT enables devices to transfer files including the emails, digital photos, audio, video, etc. और द ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट द पेन, और पेन को इम्प्लीमेंट करने के लिए ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। पेन में इंक्लूड वायरलेस कंप्यूटर कीबोर्ड एंड माउस, ब्लूटूथ इनेबल्ड हैंडबोल्ट, वायरलेस प्रिंटर्स एंड TV रिमोट्स, ये सब इसमें पेन का एग्जाम्पल कहलाएंगे। नाउ द नेटवर्क दैट बिलोंग्स टू ए सिंगल पर्सन और यूजर इज नोन एज द पेन। एक सिंगल पर्सन और यूजर का जो नेटवर्क होता है वो पैन कहलाता है। नाउ आता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल LAN is a privately owned computer network covered a small geographical area, small physical area like a home, a office or a building such as a school. तो ये आपका एक स्कूल हुआ, एक होम हुआ, ऑफिस हुआ, बिल्डिंग हुई, इनके अंदर जो एरिया बनता है उसको हम LAN कहते हैं। इट कवर्स एन एरिया स्प्रेड ओवर अ फ्यू मीटर्स टू ए रेडियस ऑफ द फ्यू किलोमीटर्स। कुछ मीटर की रेडियस से लगाकर कुछ किलोमीटर तक है जो ये दोस्तों काम आती है। ओकेजनली ए LAN कैन स्पान ए ग्रुप ऑफ नियर बाई बिल्डिंग। कभी कभी हम दो बिल्डिंग आपस में, जो पास में दो बिल्डिंग है उनमें भी LAN बना सकते हैं। इन एडिशन टू ओपनिंग इन ए लिमिटेड स्पेस, ए LAN इज ऑन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाई ए सिंगल पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सिंगल पर्सन या एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मेंटेन की जाती है। ए LAN कैन बी सेट अप यूजिंग वायर्ड मीडिया, UTP केबल्स, कोक्शियल केबल्स etc. और वायरलेस मीडिया, इंफ्रारेड या रेडियो वेव्स से आप बना सकते हैं। इफ अ LAN इज सेटअप यूजिंग द अनगाइडेड मीडिया इट इज नोन एज WLAN। जब ये अनगाइडेड मीडिया वायरलेस मीडिया से बनती है तो इसको WLAN कहते हैं। और द की पर्पज ऑफ द LAN इज टू शेयर रिसोर्सेज। मेन काम इसका है रिसोर्सेज शेयर करने का। LAN यूजर्स कैन बी शेयर डेटा, प्रोग्राम, प्रिंटर, डिस्क, मोडेम एटसेट्रा। देखिए आप ये LAN कैसे बन सकती है दोस्तों। एक घर के अंदर LAN ऐसे बन सकती है
घर के जितने भी डिवाइसेज आपस में जुड़े हुए हैं। लैन इन ऑफिस, एक ऑफिस के अलग अलग डिपार्टमेंट के कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। लैन इन बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के अंदर भी है जो लैन बन सकती है, ऐसे दोस्तों देख लीजिए आप। लैन इन कैंपस, एक कैंपस के अंदर, ठीक है, बिल्डिंग ए बिल्डिंग बी, दो अलग अलग बिल्डिंगें हैं और ये कैंपस है आपका, और इसमें भी आप इसको लैन को आपस में कनेक्ट कर सकते हो दो बिल्डिंग के अंदर भी। डाटा ट्रांसफर रेट स्पीड ओवर ए लोकल एरिया नेटवर्क कैन वेरी फ्रॉम 10 Mbps टू 1 Gbps। यहाँ 10 Mbps से 1 Gbps की मिलती है आपको स्पीड। नाउ आती है मैन, ये आती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन इज लार्जर देन लैन, लैन से थोड़ा ये और हाई लेवल का होता है, थोड़ा सी बड़ी एरिया में होता है। एंड कैन कवर ए सिटी, एक सिटी की अंदर जितना पूरा सिटी के अंदर जो कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है वो मैन के रूप में देख सकते हैं अपन। एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज, ए मैन यूजुअली इंटरकनेक्ट्स ए नंबर ऑफ लैन्स एंड इंडिविजुअल कंप्यूटर्स। ठीक है, ये आपस में अलग अलग लैन को जोड़ के भी बनाया जा सकता है। इट ऑल्सो शेयर द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज अमंग यूजर्स। ऑल टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन मीडिया, गाइडेड और अनगाइडेड, आर यूज टू सेट अप ए मैन, और ए मैन इज टिपिकली ओन्ड बाई ए ऑपरेटेड बाई ए सिंगल एंटिटी सच एज द गवर्नमेंट बॉडी। एक सिटी के अंदर एक गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी उसकी सरकारी ऑफिसेज हैं उनको ये जोड़ सकता है ये, और इसको मैन कह सकते हैं अपन। ए गुड एग्जाम्पल ऑफ मैन इज द इंटरकनेक्टेड ऑफिसेज ऑफ द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। इसका भी एक जो MNC होती है उसके ऑफिसेज को जोड़ने को भी हम जो मैन का एग्जांपल कह सकते हैं। और केबल टेलीविजन नेटवर्क, आपके जो केबल टीवी का जो नेटवर्क है वो भी एक होल सिटी के अंदर, वो भी आपका मैन का एग्जांपल है। देखिए आप कैसे ये मैन किस तरह से ये काम करती है दोस्तों, देख लीजिए आप खुद ही। ये जैसे उदाहरण के लिए आपका पूरा ये बस स्टेशन है, यहाँ रिपीटर लगा हुआ है, ये SME कस्टमर हैं, ये रेजिडेंशियल कस्टमर है, ये SOHO कस्टमर हैं, बेस स्टेशन है आपका, ये मल्टी टैलेंटेड कस्टमर्स हैं। और ये सारी सिटी के अंदर अलग अलग स्टेशनों को हमने वायरलेस जोड़ा हुआ है इनको, और ये मैन का एग्जांपल हुआ। नाउ फाइंड इज द वाइड एरिया नेटवर्क दोस्तों। अब बात आती है कि ये वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। तो ए वैन इज ए टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, ये वैन होता है वो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। दिस टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्प्रेड ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया अक्रॉस द कंट्री एंड कंटिनेंट्स। ये सभी देशों और सभी कंटिनेंट्स को जोड़ता है आपस में। और WWAN आर जनरली यूज टू इंटरकनेक्ट सेवरल अदर टाइप्स ऑफ द नेटवर्क सच एज लैन, मैन, ETC और PAN, सबको आपस में जोड़ लेता है। द फैसिलिटेट द फास्ट एंड इफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन एट हाई स्पीड एंड लो कॉस्ट। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि हाई स्पीड के साथ आप अपना काम कर सकते हो और लो कॉस्ट में अपना काम कर सकते हो। ए वैन यूजेज कॉमन कैरियर्स लाइक सैटेलाइट सिस्टम, टेलीफोन लाइन्स, ETC। ए वैन can cover an area with a radius spanning the hundreds of kilometers, or a network of the ATM, banks, government offices, international organization offices spread over the country, continents, or the covering many continents are the example of WAN। ठीक है, all types of the communication media, इसमें आप guided, unguided जैसा भी चाहो, are used to be set up a WAN। The best known example of WAN is the इंटरनेट। इंटरनेट इसका अपना आप एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। और द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट वैन, ये अपना आप एक लार्जेस्ट वैन है, स्पैनिंग द इंटायर प्लेनेट। ए वैन इंटरकनेक्ट्स ऑल द कंप्यूटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ये देख लीजिए आप, इसका ये पर्सनल एरिया नेटवर्क पेन है आपका इधर, ये लोकल एरिया नेटवर्क बना हुआ है इधर, ये वाइड एरिया नेटवर्क है, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड है जो जुड़ा हुआ है, यानी दुनिया का हर कंप्यूटर आपस में जुड़ा हुआ है दोस्तों। नाउ फॉलोइंग इज द टेबल समराइज द, फाइनली हम इसको समराइज करेंगे दोस्तों। समराइज करने से ठीक पहले थोड़ा सा देख लीजिए आप ये चार्ट को। द फॉलोइंग टेबल समराइजेज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैन, लैन, वैन, मैन एंड वैन्स। तो ये दोस्तों अपन किस तरह से देखते हैं, ये पैरामीटर्स। पहले है एरिया कवर, तो पेन के अंदर 10 मीटर तक रेडियस होती है इसकी, लैन के अंदर 10 किलोमीटर, मैन के अंदर 100 किलोमीटर तक या उससे भी ज़्यादा, और वैन के अंदर इंटायर कंट्री। नेटवर्किंग की बात करें तो ये कॉस्ट की बात करें तो ये पेन के अंदर नेग्लिजिबल है, लैन में ये इनएक्सपेंसिव है, सस्ती पड़ती है, मैन के अंदर ये एक्सपेंसिव है, और वैन तो वेरी एक्सपेंसिव होगा क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड है। नाउ ट्रांसमिशन स्पीड की बात करें तो पेन में हाई स्पीड मिलेगी, लैन में भी हाई स्पीड मिलेगी, मैन के अंदर मॉडरेट स्पीड मिलेगी, और वैन के अंदर थोड़ी सी आपको लो स्पीड मिलेगी, क्योंकि जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता है तो स्पीड थोड़ी कम होती है। एरर रेट, पेन के अंदर लोएस्ट एरर रेट रहती है, लैन में भी लोएस्ट रहती है, मैन के अंदर मॉडरेट और द वैन के अंदर हाईएस्ट रहती है। नेटवर्क डिवाइसेस की बात करें अगर अपन, तो पेन को जोड़ने के लिए आपका USB डोंगल चल जाएगा या WLAN। लैन के लिए WLAN हब, स्विच, रिपीटर, मॉडेम लगाने पड़ेंगे। मैन में आपको राउटर या गेटवे लगाना पड़ेगा।
और वैन के अंदर भी आपको राउटर गेटवे। टेक्नोलॉजिकल मीडिया यूज्ड की बात करें तो ये आपका पेन इंफ्रारेड या ब्लूटूथ से जुड़ जाएगा। लैन आपकी इथरनेट या वाईफाई की जरूरत पड़ेगी। और मैन के अंदर आपका ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो या माइक्रोवेव चलेगा। और डब्ल्यू लैन वैन के अंदर आपको सैटेलाइट का उपयोग करना पड़ेगा दोस्तों। नाउ लैन एंड वैन आर द टू प्राइमरी एंड बेस्ट नॉन कैटेगरीज ऑफ द एरिया नेटवर्क। द अदर हैव द इमर्ज्ड एंड द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। नाउ कंपेयरिंग लैन एंड वैन। अब थोड़ा सा ये लास्ट टॉपिक है, अपन थोड़ा सा कंपेयर करने थे लैन और वैन को। एज वी हैव seen the computer networks can be classified into LAN, WAN or WAN now categories on the basis of the geographical domains, and the WAN extends over a large geographical area such as the states or countries. A LAN is confined or relatively smaller area such as an office and building. A WAN usually covers a city. Now points देख लिया आप। पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, क्या है डिफरेंस बिटवीन LAN और WAN। तो द डिस्टेंस बिटवीन द नोड्स इन द LAN कनेक्शन इज द लिमिटेड होता है और 10 किलोमीटर तक आपका जोड़ सकते हैं, जबकि वैन होता है वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर होता है। फिर लैन के अंदर आपका 1 मेगाबिट पर सेकंड की स्पीड आती है एंड 10 MBPS, वाइल वैन ऑपरेट्स एट स्पीड लेस देन 1 MBPS। ठीक है, जबकि आपकी वैन की स्पीड 1 MBPS से भी कम होती है। एरर रेट लैन के अंदर लोअर होती है और वैन के अंदर लोअर देन द वैन। ठीक है, और लैन आर द लिमिटेड बाय डिस्टेंस। लैन डिस्टेंस में छोटी होती है, जबकि वैन तो पूरी कंट्री को और देश को ही जोड़ती है। ठीक है, इस तरह से हमने देखा है कि दोस्तों किस तरह से लैन वैन मैन का आपका उपयोग हुआ है। ठीक है, और अब हम दोस्तों बात करते हैं कि मुझे आज आप लोगों को ये आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा कि हमने आज इसमें लैन वैन मैनों के बारे में पढ़ा और नेटवर्क्स के बारे में पढ़ा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे आवश्यकता होने पर एक बार और देखेंगे और अपने दोस्तों को आप इसको शेयर करेंगे और सबको सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे मेरा इन्फॉर्मेशन तड़का चैनल। थैंक यू वेरी मच।